السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی صورتحال اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور، اقتصادی روابط پر مبنی تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم۔ کونسلر امور کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام، بزنس کونسل کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کے ہمراہ تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل ترکیے کے دورے پر انقرہ جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے دو طرفہ تعلقات میں اضافے، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ ترکیے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر الجہتی شراکت داری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافے کا خیر مقدم۔ برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی اور حکومتی پالیسیز کی درست سمت کا مظہر۔ ٹیکسٹائل برآمدات کا 13 ارب ڈالر سے تجاوز کرنا خوشائن۔ نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اور روانڈا کے مابین مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان روانڈا کے سفارتی عملے کو تربیت دے گا۔ دونوں ممالک تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ پاکستان روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی ہے۔ روانڈا کے ساتھ تجارت کا حجم بڑھانا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روانڈا کے وزیر خارجہ کی نیوز کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں کارروائی۔ 5 خارجی جہنم واصل۔ جنوبی وزیرستان میں انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ ذبیح اللہ بھی ہلاک۔ دہشت گرد بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں ISPR۔ پاکستان مستحکم اور روشن مستقبل کی جانب رواں دواں۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، اسٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی، انڈیکس میں 1067 پوائنٹس کا اضافہ، 1,18,383 پر بند۔ مارکیٹ میں 36 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب کا ریکارڈ پیکج۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ گندم کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کا مجموعی پیکج۔ 25 ارب روپے کا ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام منظور۔ گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ فلاور ملز کو 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کی لازمی ترمیم۔ 5000 سپر سیڈر پر 8 ارب روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پائیدار ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیز کا تسلسل ناگزیر۔ اڑان پاکستان ترقی کا منصوبہ، جدید ٹیکنالوجی اور مہارت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیز تر ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر۔ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 87ویں برسی۔ مفکر پاکستان نے انمول شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی، مسلمانوں کو سیاسی اور فکری طور پر متحد کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کا رابطہ۔ ٹیلی فونک گفتگو میں پانی کے مسئلے پر مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ۔
हज इंतजामात मुकम्मल। रवां बरस हज ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार लाएंगे। हज कोटे में इजाफे पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम की क़यादत में मुतल्लिका इदारों और वजारतों ने भरपूर ताउन किया। वजीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का इस्लामाबाद में सालाना हज कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़द। नौजवान नस्ल मुल्क का कीमती सरमाया। हुकूमत नौजवानों की तरक्की के लिए तमाम वसाइल पुरकार ला रही है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। वज़ीर आज़म और माशी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा यूथ कन्वेंशन से खिताब। रवां साल की दूसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन से अपील है कि पोलियो के खिलाफ कौमी मुहिम में भरपूर ताउन करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कांस्टेबल की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद के दर्जात की बुलंदी और वर्षा के लिए सब्र की दुआ। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के आज़म का अयादा। गाजा पर काबिज इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में सिहोनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 62 जख्मी। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीका की कार्रवाई, 12 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर के बारे में इस्तिस्वाब राय की करारदाद पर अमल दरामद कराए। मीरवाइज का शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को शानदार खराज अक़ीदत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इम्तियाजी वक्फ कानून का लदम करार देने का मुतालबा। सीनियर हुर्रियत रहनुमा का भारतीय प्रोपेगेंडे को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर। कुलगाम में काबिज हुक्काम के खिलाफ लोगों का एहतजाजी मुजाहरा। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का इंतकाल वेटिकन सिटी में हुआ। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी सरबराह थे। पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की तवाना आवाज थे। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। पोप फ्रांसिस की क़याम अमन के लिए खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। आंजहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलमबरदार थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत, तहम्मुल और बाहमी एहतराम के पैगाम को आम किया। तर्ज अमल न सिर्फ मसीही दुनिया के लिए बल्कि तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशरे रहा। अमन, समाजी इंसाफ, बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काविशों को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर इजहार अफसोस। बहुत शानदार शॉट, इसका इंतजार था। यह है टी20 क्रिकेट। खूबसूरत ड्राइव और आउट। सील शॉट। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल। कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी की 2 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन। रावलपिंडी और कराची के बाद PSL का मेला कल से मुल्तान में भी सजेगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स कल रात 8 बजे आमने सामने। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर पहली कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कलंदर्स भी दूसरी पोजीशन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। PSL के दिलचस्प मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और डेनमार्क के होल्गर रेवन ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में होम फेवरेट और आलमी नंबर 2 कार्लोस अल्काराज को 7-6 और 6-2 की अपसेट शिकस्त।
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अरे ये टेंशन नहीं लो, ये कब हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। This HBL PSL. It's time to get back in the game. तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक नौजवानों के लिए नेवटेक लाया हवावे के इश्तराक से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोर्सेज, जिससे होगा नौजवानों का IT के शोबे में शानदार करियर और होंगे रोजगार के बेशुमार मौके। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर के नौजवानों के लिए हवावे सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। 3 माह दौरानिया के बैनुल अक़वामी मयार की ट्रेनिंग में क्लाउड और AI टेक्नोलॉजीज जैसे कोर्सेज पर होगी खसूसी तवज्जो और नौजवानों का मुस्तकबिल होगा यकीनी तौर पर कामयाब। मज़ीद मालूमात के लिए नेवटेक वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान का एक खसूसी इक़दाम। अपना घर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, जहां होता है अपनों की खुशियों का पास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की है ये लगन, हर बेघर मनाए अब अपने घर की खुशियों का जश्न। पंजाब के कम आमदन वाले 28,219 से जायद खानदानों को अपने घर की तामीर के लिए 31 अरब रुपए से जायद की मालियत के कर्ज़ात फराहम कर दिए गए हैं। 23,650 से जायद घरों की तामीर तेजी से जारी। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरला तक, जबकि दही इलाकों में 1 से 10 मरला तक के प्लॉट मालिकान अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए आज ही ऑनलाइन पोर्टल विजिट करें या टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। पुरखुलूस क़यादत बन रही है खुशियों की तर्जुमान। मरियम नवाज शरीफ बढ़ा रही है पंजाब के हर बेघर का मान। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मजबूत सकाफ़ती और इक़्तिसादी रवाबत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकत दारी तक बढ़ाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा और ताउन की नई राहें तलाश करने के UAE के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया है। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तफसील नमरा सुहेल से। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफूद के सतह पर मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने, जबकि अमाराती वफ्द की क़यादत शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान पहले से बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर भी बातचीत हुई। मोहम्मद इसाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने बाहमी दिलचस्पी के आलमी अमूर और खदशात पर भी बातचीत की। Ages-old fraternal relations and shared commitments and love and affection. When we met 21st of February, we agreed that you will very kindly make a visit and you are fulfilling your promise. Our relationship has been growing. If it's trade, investment, aviation, but also areas regarding ports,
logistics, working with the rest of the neighborhood, with Pakistan and through Pakistan. दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सकाफत के शोबे में ताउन के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। वजारत खारजा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा के दरमियान काउंसलर अमूर के लिए मुश्तरका कमेटी का क़याम पर भी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात ईवान सनत और तिजारत के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान नायब वजीर आजम से मुलाकात के लिए दफ्तर खारजा पहुंचे तो मोहम्मद इसहाक डार ने मरकजी दरवाजे पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरतपाक मुसाफा हुआ। पाकिस्तान में अहम मुलाकातों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम अपने मुल्क वापस रवाना हुए तो मोहम्मद इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर उनको रवाना किया। पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात में बंधे पाकिस्तान और यूएई अवामी तरक्की के लिए दहाइयों से मिलकर काम कर रहे हैं। यूएई के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान इन बरादराना ताल्लुकात में इजाफा करेगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्की का दौरा कर रहे हैं। वो अपने दौरे में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म के इरादे समेत खित्ते की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की देरीना इत्तेहादी और तज़वीराती शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी दिलचस्पी का मुख्तलिफ उमूर पर ताउन और हम आहंगी के लिए आला सतह स्ट्रेटजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, जिसका 7वां इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ था, जिसमें सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कसीर उल-जहती शराकतदारी को बढ़ाने और दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का अयादा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं। समंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा है। समंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर खुसूसी इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हाल ही में मुनक्किद होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने शिरकत की, जो हुकूमती पॉलिसीज़ पर उनके एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के सादिक जज्बों, वतन के लिए मोहब्बत और इसार और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, जो दुनिया भर में मेहनत करके अपने मुल्क के लिए नाम कमा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने समंदर पार पाकिस्तानियों के एतराफ़ में हाल ही में बड़ा पैकेज दिया है। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों और स्टेट बैंक के जरिए सबसे ज़्यादा सरमाया पाकिस्तान भिजवाने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उनकी खिदमात के पेश नज़र सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। इजलास को समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ऐलान करदा सहूलियात के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुलाई 2024 ता मार्च 2025 टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम किया है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त 13.61 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो इंतहाई खुशाइंद है। मार्च 2025 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मज़हर है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मस्बत माशी इशारे हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुए। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। हम निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा हैं, ताकि मुल्की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। पाकिस्तान ने रवांडा के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान रवांडा के सफारती अमले को तरबियत फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जैन पैट्रिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील शेयर कर रहे हैं रिजवान आरिफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। Pakistan attaches great importance to its relations with Rwanda. Our bilateral relations continue to grow stronger. Both sides are firmly committed to deepening mutually beneficial cooperation in the years ahead. Our priorities and the areas we have chosen include trade, investment, defense, diplomatic
area and people-to-people exchanges. Pakistan offers a promising market for Rwandan products. We are already among the largest importers of Rwandan tea. We also signed a memorandum of understanding in the field of diplomatic training. रवांडा के वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आला सतह के तबादलों के लिए पुरज़्म है। आला सतह के तबादलों से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत का हुजम बढ़ाना चाहते हैं। We want to do business with Pakistan and attract Pakistani businesses to explore Rwanda, a land of 1,000 opportunities. Our relations is based on mutual respect and also common drive to work together in many sectors such as trade, investment, education and defense. इस मौके पर नायब वजीर आज़म इसहाक डार और रवांडा के वजीर खारजा ने रवांडा के साथ सफारती तजारत में मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान रवांडा के सफारती अमले को तरबियत फराहम करेगा। इससे कबल रवांडा के वजीर खारजा की वजारत खारजा आमद पर नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। किगाली और इस्लामाबाद में सफारती मिशन के क़याम के बाद रवांडा के वजीर खारजा का ये पहला सरकारी दौरा है। ये दौरा दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताउन के नए मौके फराहम करेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से रवांडा की वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेन पैट्रिक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट ने दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह रवाबित और मुश्तरका ताउन पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस्लामाबाद में रवांडा के हाई कमीशन की इफ्तिताह ने ताल्लुकात को नई जहत दी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान रवांडा दोस्ती ग्रुप का क़याम काबिल तहसीन कदम है। उन्होंने कहा कि दिफा के शोबे में ताउन मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेन पैट्रिक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान ज़राअत, ऑटो सेक्टर और सियाहत में शराकत के वसी मौक़े मौजूद हैं। फ़रीक़ैन ने आला सतह रवाबित बढ़ाने और कसीर मुल्की प्लेटफॉर्म्स पर ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स 1067 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,18,383 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। मौसम इक़्तिसादी पॉलिसी की बदौलत मुआशी मैदान में मौजूदा हुकूमत को कई कामयाबियां हासिल हुई हैं। करंट अकाउंट बैलेंस का सरप्लस होना और तहसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इनकी इक़्तिसादी टीम की अनथक मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। महंगाई और इंटरेस्ट रेट में नुमाया कमी से मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री दोबारा से बहाल हो गई है। स्टॉक मार्केट में भी आज ऑटो सेक्टर के शेयर्स में तेजी देखने में आई। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1510 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। कभी इम्कान है कि पाकिस्तान SLA दोबारा साइन कर लेगा और बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा IMF का, जिसके बाद पाकिस्तान को एडिशनल डॉलर्स मिलेंगे। साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही पाकिस्तान कुछ फाइनेंसिंग करने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो कंटिन्यू रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। खासतौर पर ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आए। ना सिर्फ अच्छे डिविडेंड दिए हैं बल्कि इसके साथ साथ अर्निंग्स भी हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद जो सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, खासतौर पर इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री कंटिन्यू बोरिंग कर रही है। ऑटो सेक्टर के जो नंबर हमें रिसेंटली आए वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आज बाजार हिस्सेस में 36 अरब 42 करोड़ रुपए की लागत के 3,40,000 सौदे हुए, जिनमें 67 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में मजबूती तौर पर 449 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 251 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 157 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 41 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC की मुआवनत से फैसलाबाद में 30वीं टेक्सटाइल एशिया बैनुल-अक़वामी नुमाइश का कामयाब इनेकाद किया गया। नुमाइश में चीन, तुर्की, जर्मनी, जापान, इटली, स्विट्जरलैंड, कोरिया, रूस और मलेशिया समेत बेशतर ममालिक ने शिरकत की। जदीद मशीनरी, स्मार्ट फैब्रिक्स और पायदार सनती हल की फराहमी नुमाइश का मरकजी हिस्सा थे। नुमाइश पाकिस्तान को टेक्सटाइल इनोवेशन का एशियाई मरकज़ बनाने की जानिब एक अहम कदम है। नुमाइश के जरिए बरामदात में तेज़ी आएगी और सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। गुज़श्ता रोज़ और आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला रज़मक में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 5 खारिज जहन्नुम वासिल हुए।
जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी एक और कार्रवाई में हमारे जवानों ने खारजी सरगना ज़बीउल्लाह ज़ाकिर को हलाक कर दिया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म अमल रहा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। इलाके में किसी खारजी की मुमकिन मौजूदगी के पेश नज़र तलाशी की कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 6 दहशतगर्दों को सरगना समेत जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने फितनतुल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इयादा करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज। वजीर आला मरियम नवाज ने काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ और फ्लावर मिल्स को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम का हुक्म दिया। लाहौर में वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी और गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली मेरा मिशन है। इजलास में बताया गया कि पंजाब के अलावा किसी सूबे में गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी नहीं दी गई। किसान कार्ड के जरिए गंदम के काश्तकारों ने तकरीबन 55 अरब रुपए के ज़रिए मदाखिल खरीदे। काश्तकारों को 9,500 ट्रैक्टर्स पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हर जिले में सबसे ज़्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकार की हौसला अफजाई की जाएगी और नकद इनाम दिया जाएगा, जबकि अगीती कपास काश्त करने वाले किसानों को 25,000 रुपए फी ब्लॉक और मजमूई तौर पर 37.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि किसानों के नाम पर सियासत न की जाए। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने कहा कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने किसानों की फलाह तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले सिंध के किसान का पंजाब के किसान से मुआवजा कर लें। जिनको आज बड़ा ख्याल आ रहा ना पंजाब के काश्तकार के जो है वो कंधे पे चढ़ के सियासत करने का, किसान हमारा काश्तकार हमारे सर का ताज है और उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वही स्टेटस दिया है जो एक सर के ताज को देते हैं। उसको अगर इमदादी कीमत जो है वो उसकी अनाउंस नहीं हुई या उसको हुकूमत ने नहीं ख़रीदा तो मेक श्योर किया जा रहा है कि उसको जो निजी शोबा है वो उसको ख़रीदारी इसकी करे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को 10 अरब रुपए की सब्सिडी पर 9500 ट्रैक्टर्स जबकि ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 45 लाख रुपए का जो 85 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो सबसे ज़्यादा गंदम जो उगाने वाला काश्तकार है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको 40 लाख रुपए का जो 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो फ्री मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो गंदम उगाने वाला है उसको 35 लाख रुपए का 60 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो मिलेगा। और हर ज़िले में जो सबसे ज़्यादा गंदम उगा रहा है काश्तकार उसको 10 लाख रुपए कैश की सूरत में, दूसरे नंबर पे आने वाले को 8 लाख रुपए मिलेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज किसानों के मफादात को ज़ाती अहमियत देती हैं और ज़राअत समेत हर शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बैन सूबाई राबता राना सनाउल्लाह और सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने और नहरी निज़ाम से मुतालिक मामलात को अफ़वाम तफ़हीम से हल करने पर इत्तेफाक किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वाटर कार्ड के तहत किसी भी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की तकसीम एक इंतज़ामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इन्हीं बुनियादों पर तलाश किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने यकीन दहानी कराई कि किसी भी सूबे की हक तलफी नहीं की जाएगी और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुशावरत के दायराकार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और PPP सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आरिज़ धामरा, शाजिया मरी, सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, रुकन सिंध असम्बली सुहेल अनवर सियाल, सखर के मेयर अरसलान शेख ने मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी, तंजीमी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम यूथ कन्वेंशन हुआ। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम और दीगर लीगी ओहदेदारों ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने की हुकूमती आज़म का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। यूथ कन्वेंशन में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ने कहा कि नौजवानों को डिजिटल यूथ हब जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए हुनर सिखाया जा रहा है और उन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यूथ प्रोग्राम में मदारिस समेत तमाम तालीमी इदारों और कमज़ोर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को भी शामिल किया जा रहा है। राना मशहूद ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहली मरतबा मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की है, जिसका मकसद मुल्क की तमाम सूबों को तालीमी तरक्की में यकसा शराकत दार बनाना है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत ही खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हयाताबाद में दफ्तर कायम कर दिया गया है, जबकि डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की हल्फ बर्दारी के बाद इस प्रोग्राम को हर यूनियन कौंसिल तक वसअत दी जाएगी। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुसलसल मेहनत से मुल्क डिफ़ाल्ट के ख़तरे से निकल चुका है, मईशत मुस्तहकम हो रही है और महंगाई में कमी आ रही है। इस मौके पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को तरजीह दी है और नौजवानों के तमाम प्रोग्राम्स मेरिट की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। जामिया पेशावर की साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम ऑडिटोरियम में इजहार ख्याल के दौरान वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कौम की तरक्की में नौजवानों की कलीदी किरदार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद आज के नौजवान मुल्क की मुस्तकबिल को बदलने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और माशी चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की अज़म की तारीफ की। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर में मशावरती वर्कशॉप के मौके पर राना मशहूद अहमद ने कहा कि डिजिटल यूथ हब के जरिए रजिस्ट्रेशन पर तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि वफाकी हुकूमत मदारिस को प्रोग्राम में शामिल करके मनफी प्रोपेगेंडे का तोड़ कर रही है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत फर्टिलाइज़र जायज़ा कमेटी के इजलास में खादों की मौजूदा कीमत का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफाद को मद्देनज़र रखकर कीमतों का तयन करना चाहती है। किसान का इस्तेहसाल किसी तरह भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। वफाकी वज़ीर ने खाद कंपनीज़ को किसान बोर्ड की तजावीज़ पर अमल दरामद करने की हिदायत दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुल्की निज़ाम अदल को मज़ीद शफ़ाफ और फ़ाल बनाने में मदद मिली है। वो लाहौर में वकला से खिताब कर रहे थे। तफसील बताएंगे नवीद हयात। पंजाब बार कौंसिल में 2 रोज़ा मसालहत और सालसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुआशरे में इंसाफ के फ़रोग़ के लिए ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाना ज़रूरी है। 3 लाख मुकदमात जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फिगर्स हैं वो भी हज़ार हा में हैं और नीचे आने का नाम नहीं लेते। अब ये जो नई डिस्पेंसेशन है पोस्ट 26 अमेंडमेंट, इससे कम से कम ये हो गया कि जो मुकदमात अमूमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए 184(3) की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हैं या इसी से मुतल्लिका या वो केसेस जिनमें कोई पॉलिटिकल एंगल्स होते हैं, उन केसेस के लिए अलग से बेंच और टाइम मुख्तस कर दिया गया है ताकि जो आपके हमारे आम लोगों के मुकदमात हैं वो उनकी वजह से ताख़ीर का शिकार ना हो। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा कि रियासती रिट और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। सरकारी अमलाक पर हमलावर होने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। जो कानून के मुताबिक मुकदमात कायम हुए हैं, आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है, वो करे जो अदालतें फैसला करेंगी सरे तस्लीम खाम। वफाकी वजीर ने कहा कि बहुत जल्द लाहौर की तमाम अदालतों को एक ही मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिससे साइलिन के साथ साथ वकला को भी सहूलत हासिल होगी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़जाना ने आलमी बैंक ग्रुप IMF स्प्रिंग इजलास 2025 के मौके पर डेलॉयट टीम से मुलाकात की और पाकिस्तान की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल, हुकूमत के शोबा जाती तरक्याती एजेंडे और बरामदात पर मबनी तरक्याती तरजीहात से आगाह किया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, कीमती मादनियात की तलाश और मार्केटिंग, निजकारी, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो पॉलिसी और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के निफाज के शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की
87वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। रिपोर्ट कर रहे हैं असद अब्बास। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वर पाकिस्तान पेश करके बरसगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी को पहली दफ़ा बाकायदा शक्ल में पेश किया। उन्हें आलम इस्लाम के एक मारूफ शायर, फ़लसफ़ी और मुफक्किर की हैसियत से भी जाना जाता है। अल्लामा इकबाल का पैगाम खुद ही मुसलमानों के लिए मशाल राह है। वो नौजवानों को अपनी सोच और हौसला बुलंद रखने का सबक देते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनके यौम वफ़ात पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को सियासी, फ़िक्री और रूहानी तौर पर मुत्तहिद करके तहरीक पाकिस्तान को नजरियाती बुनियाद फराहम की। दोनों रहनुमाओं ने अल्लामा इकबाल के नजरियात को अपना कर एक खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर के अज़्म का इयादा किया। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की सालमियत, इस्तेकाम, तरक्की और मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ की। उन्होंने विजिटर्स बुक में तासुरात दर्ज की और अल्लामा इकबाल को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का ख्वाब ना देखते तो आज हम आज़ाद वतन में सांस ना ले रहे होते। अल्लामा इकबाल का एहसान कौम ता क़यामत नहीं उतार सकती। अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर बाहैसियत कौम हमें ये अहद करना चाहिए कि हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। असद अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना होगा। वो लाहौर में इकबाल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मौज़ुमुद्दीन। मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इलामा इकबाल ने अपने कलाम से महकूम कौम के जहनों की आबियारी की। उन्होंने कहा कि इकबाल ने खुदी का तस्वुर पेश किया जिसका पहला जीना यकीन कामिल है। एहसन इकबाल ने कहा कि इकबाल की शायरी और फलसफा हमारी फिक्री रहनुमाई का जरिया है। उन्होंने कहा कि शायर मशरिक की फिक्र को तालीमी निसाब में मौसर अंदाज में शामिल किया जा रहा है। आज इकबाल के अफकार को किताबों से निकाल कर किरदार में लाने की जरूरत है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जिंदगी, शायरी और फिक्र हमें दावत तजदीद देती है। वो हमें बताते हैं कि हम सिर्फ तारीख के वारिस नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मेमार भी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से जो विजन अपनाया है वो इकबाल के अफकार की अमली ताबीर है। इससे कबल एहसन इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़वानी भी की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों को फ़िक्र इकबाल से रोशनास करवा के इंतहा पसंदी और मजहबी मुनाफरत जैसे चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलामा इकबाल ने कौम को इत्तेहाद व तंजीम की तालीम और खुदी का तस्वुर देकर बावकार, खुद मुख्तार और खुशहाल कौम बनने का रास्ता दिखाया। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पाकिस्तान की नज़रियाती असास और बुनियाद है। आज पाकिस्तान में जो फ़िक्री इंतशार नज़र आता है उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अफकार इकबाल से मुंह मोड़ा है। वफाकी वजीर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गैर कानूनी तौर पर मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान से वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 3 रोज़ में 3,387 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। अब तक पाकिस्तान से 9,79,486 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस आ चुके हैं। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न की जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इरादा किया है कि कश्मीरी अवाम अपने मुनसिफाना जदोजहद आज़ादी को दबाने के बीजेपी और RSS के हिंदुत्व एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करे जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत की ज़मानत दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस करारदाद पर अमल दरामद का पाबंद है। उन्होंने खबरदार किया कि मक़बूजा इलाके में बाज़ जमातें हिंदुत्व क़ुव्वतों को सहूलत फराहम कर रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने बडगाम में एक ताज़ियती मजलिस से खिताब करते हुए मुसलमानों को तकसीम करने की साजिशों के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया। उन्होंने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट को मुसलमानों की शनाख्त पर हमला करार देते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट से उसे कलअदम करार देने का मुतालबा किया। उन्होंने जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी से बार बार रोके जाने पर इजहार अफसोस का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि अदलिया उनकी मजहबी हकूक को बरकरार रखेगी और उनकी गैर कानूनी नज़रबंदी को ख़त्म कर देगी। मीरवाइज ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल
को उनकी बरसी पर शानदार खराजी अकीदत पेश करते हुए उन्हें आलम इस्लाम के इत्तेहाद का अलमबरदार करार दिया। जिला कोलगाम के इलाके कुंड के रिहायशियों ने बिजली के ज़्यादा बिलों और रिश्वतखोरी पर काबिज हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा बिजली के एहलकार जानबूझकर ज़्यादा बिल दे रहे हैं और फिर कुछ रकम लेने के बाद मकामी लोगों से रिश्वत तलब करते हैं। मुजाहिरीन ने बदउनवान एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। करो ना कलियां फ्लेक्स करो यही सोच के आ गया मैं सारी दुनिया कहती है ओ किंग ऑफ बंगला एक ही है। नाज़रीन, खेल की खबरों में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल हैं। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। नेशनल बैंक स्टेडियम में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। साइम अयूब पहले आउट होने वाले बैटर थे जो 4 रन बनाकर कैच आउट हुए। टॉम कोहल्स कैडमोर 7 रन बनाकर खुशदिल शाह की गेंद पर कैच आउट हुए। तीसरे आउट होने वाले बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम थे। उन्होंने 41 गेंदों पर 46 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। मोहम्मद हारिस 28 और हुसैन तलत 18 रन बनाकर आउट हुए। मिचलॉन 5 रन बना सके। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स तीसरे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर रहे। कराची किंग्स के 4 और पेशावर ज़ल्मी के 2 पॉइंट्स हैं। PSL सीजन 10 का कराची में ये आखिरी मैच है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि गुज़श्ता मैचेस में की जाने वाली गलतियों पर फोकस करके उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की है। पेशावर ज़ल्मी के पास बल्लेबाजों के साथ साथ अच्छे बॉलर्स भी मौजूद हैं। हमारा जो पिछले साल था, जो हमें अपना वीक स्पॉट लग रहा था, वो इस बारी हमने अपने उसको फील किया। हमने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को जो है वो और स्ट्रॉन्ग की है। बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है ही है, लेकिन उसमें भी हमने ऐड ऑन किया। ये जो फॉरनर प्लेयर ने हमें ज्वाइन किया है, एडिशन काफ़ी अच्छी है। जिस तरह वो बिग बैश में उन्होंने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल मैच चेंजर प्लेयर्स हैं। और जब वो खड़े होते हैं तो वो आपको पता है कि वो टोटली गेम चेंज कर देते हो। हमें ये स्पार्क चाहिए था, फिनिशिंग चाहिए था। नाज़रीन, रावलपिंडी और कराची के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले कल मुल्तान में शुरू हो रहे हैं। इवेंट के 12वें मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स कल आमने सामने होंगे। मुल्तान में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट्स हैं। इसने अब तक 3 मैचेस खेले, 2 जीते और 1 हारा है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुश्किलात का शिकार है। वो अपने तीनों मैच हारकर पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 19 मैचेस खेले जा चुके हैं। लाहौर कलंदर्स ने 9 और मुल्तान सुल्तान्स ने 10 मुकाबलों में कामयाबी समेटी। मुल्तान सुल्तान्स के ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि क्रिकेट में हार जीत होती है, हम कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इफ्तिखार अहमद ने कहा, हमारी टीम में बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। 3 मैचेस हारने से फ़र्क तो पड़ता है, हम कम बैक करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में इफ्तिखार अहमद ने कहा, हम होम ग्राउंड में एक्टिव नज़र आएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुल्तान स्टेडियम में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। होम ग्राउंड और ग्राउंड का भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाकाबिले शिकस्त रहने का सफ़र जारी है। इवेंट के 10वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हराकर अपने पॉइंट्स की तादाद 8 कर ली। 2 विकेटें और 47 रन बनाने में शादाब खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। किंग्स की रन बनाने की रफ्तार सुस्त रही और मुसलसल विकेटें गिरती रही। ओपनर टिम सेफर्ड ने सबसे ज्यादा 30 रन स्कोर किए। अब्बास आफरीदी 24 और 7 बेग 20 रन बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कप्तान शादाब खान, जैसन होल्डर और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। इमाद वसीम के हिस्से में 1 विकेट आई।
Sultas drilled into this game. Now that's gone high. How far has it gone? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 129 रन का आसान हदफ 17.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। यूनाइटेड की इब्तिदाई 2 विकेटें 38 के स्कोर पर गिर गईं। साहिबजादा फरहान 30 और कॉलिन मनरो 4 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने। Oh, got him. That one came in sharply, and Monroe left the gate open. कप्तान शादाब खान और आजम खान ने तीसरी विकेट की शराकत में 65 रन बनाए। आजम खान ने 31 रन स्कोर किए। शादाब खान 47 रन और 2 विकेटों के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। You always picking on me and picked one beautifully here. कुछ खबरें शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। भारत में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत कांग्रेस और BRS भी शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में रैली में एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। हैदराबाद रैली में 30 अप्रैल की रात को बत्ती गुल एहतजाज का ऐलान किया गया। बत्ती गुल एहतजाज के जरिए मोदी को वक्फ बिल की नामंजूरी का पैगाम दिया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत के कानून मुसलमानों के लिए तबाही हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एहतजाज का मकसद सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम अक़लियती फ़िरक़ों के हुकूक़ का दिफा है। मज़ालिम और जराइम पर बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की आलमी सतह पर गिराव की तैयारी। बांग्लादेशी पुलिस ने हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में शेख हसीना वाजिद को मफरूर करार देकर गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पुलिस ने दीगर 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ भी नेशनल सेंटर ब्यूरो की रेड नोटिस के लिए भी इंटरपोल को दरख्वास्त दी है। कुछ बात करेंगे गजा की। गजा पर इसराइली जहारियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 62 ज़ख्मी हो गए हैं। खान यूनुस के करीब अलमवासी के इलाके में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। सियोनी फोर्सेज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। गुज़श्ता 18 माह में गजा पर इसराइली फोर्सेज के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 51,240 जबकि 1,16,931 ज़ख्मी हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सियोनी फोर्सेज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबिज फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए दर्जनों फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। उधर यमन के हौसी बागियों ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर हमला करने का दावा किया है, जबकि अमरीकी अफवाज ने यमन में एक मशहूर बाजार पर बमबारी की थी जिसमें 12 अफराद के जाम बहक और 30 के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। गजा के हवाले से सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। लाहौर में हाफिज नईमुर रहमान के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन के हक में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की खामोशी बाइस तशवीश है। नाज़रीन, कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में वफात पा गए। वो मार्च 2013 में इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रोमन कैथोलिक चर्च के पेशवा पोप फ्रांसिस की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। पोप फ्रांसिस अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले पहले पोप थे। जॉर्ज मारियो बर्गोगिलियो 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में पैदा हुए। 2013 में बर्गोगिलियो पोप बनाए गए तो वो उस वक्त अपनी उम्र की 7वीं दहाई में थे। उन्होंने अपने लिए एक नया नाम चुना जो 13वीं सदी के मुबल्लिग असेसी के सेंट फ्रांसिस को खराज तहसीन था। अपने इंतखाब के फौरन बाद ही पोप फ्रांसिस ने कहा कि वो चीजें मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। वो एक सादा मजाज शख्स की हैसियत से मशहूर हुए और सीनियर पादरियों को मिलने वाली मराआत लेने से इज्तनाब किया। उन्होंने मुसलमानों को शिद्दत पसंद कहने की भी मुखालफत की और कहा कि इस्लाम को शिद्दत पसंदी से जोड़ना दुरुस्त नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रोमन कैथोलिक चर्च के पेशवा पोप फ्रांसिस की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पापाए रोम बैनुल मजहबी हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फरोग के अलमबरदार थे। पोप फ्रांसिस का ईस्टर के मौके पर गजा और फलस्तीन में फौरी जंगबंदी
اور انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا بیان ان کی پرامن اور انسانیت کی محبت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انجہانی پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ امن اور انصاف کی ایک توانا آواز تھے۔ انہیں دنیا بھر میں بین المذاہب مکالمے اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی کاوشوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں سالانہ حج کانفرنس ہوئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے سعودی حکومت کو حاجیوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیل حسن ریاض سے۔ اسلام آباد میں سالانہ حج کانفرنس ہوئی جس میں پاکستانی عازمین حج کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر مکہ اور مدینہ حج انتظامات دیکھنے گیا تھا۔ پاکستان کا حج کوٹا 1,80,000 ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے رہی ہے کہ آپ بھی مطلب اس میں اپنے تجربے کے مطابق جو بھی کوشش کریں وہ ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی، پاکستان کے لیے بھی بہتری ہے۔ انہوں نے بھی وہاں پر جو ان کے ذرائع تھے انہوں نے استعمال کیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ عازمین حج کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا ہے اور حج آپریشن میں کسی قسم کی بدعنوانی نہیں ہوئی۔ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ جو حجاج کے پیسے گئے ہیں یا منظمین کے پیسے گئے ہیں وہ وہاں ڈوب گئے ہیں یا وہاں سے ملیں گے نہیں، یہ ایک بے بنیاد پراپیگنڈا ہے۔ وہ پیسے مملکت سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے پاس امانت ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے محسنوں کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے منظمین کا بھی۔ حج کانفرنس کے مقررین نے حاجیوں کے مسائل کے حوالے سے وزارت مذہبی امور اور سعودی حکام کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام حاجی کیمپ اسلام آباد میں معاونین حج کے لیے 8 روزہ تربیتی کیمپ اختتام پذیر ہو گیا۔ مزید بتائیں گے بلال شیخ۔ رواں برس پاکستان سے 430 معاونین حج سعودی عرب میں عازمین حج کی رہنمائی کے لیے خدمات سر انجام دیں گے، جو حج آپریشن کے دوران پاکستان سے آنے والے عازمین حج کو رہائش، کنوینس، میڈیکل، خوراک اور دوسرے شعبوں میں بہتر سہولیات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کریں گے۔ 8 روزہ تربیتی کیمپ کے دوران معاونین حج کو فرسٹ ایڈ، CPR، سول ڈیفنس اور دیگر امور پر مشتمل جامع تربیت فراہم کی گئی۔ تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ عازمین حج کو سہولت اور بہتر خدمات کی فراہمی کے حوالے سے معاونین حج کا کردار بہت اہم ہے۔ تربیت کا مقصد معاونین کو حجاج کی بہتر خدمت کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، نماز پڑھیں یا حج بھی کریں یا دوسرے کریں، لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ کا تو بہت بڑا درجہ ہے، آپ اس جذبے سے انشاءاللہ کریں گے تو آپ کا درجہ ان سے زیادہ ہے۔ ایک سفیر کے طور پر آپ نے کام کرنا ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں 23 اپریل تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آج کراچی کا درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بہت شکریہ قدیر آپ کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کا شکریہ۔ درست ہر وقت بر وقت